This portion we took from Acts 8, हमने ये जो भाग लिया प्रेरितों 8 से लिया, 12 and 13, 12 और 13, and 18 to 23. 18 से 23 तक. Just to have some background of this man. और ये इस मनुष्य के साथ जो पृष्ठभूमि है, Well, Philip came to Samaria. जब फिलिपुस सामरी में आया, There was already a man there, a magician called Simon. और पहले से ही वहाँ पर एक जादूगर था शामोन बोल के, He was doing lot of miracles और वो काफ़ी चमत्कारों को कर रहा था through magic power. और अपने जो है जादू के सामर्थ्य से, And he was astonishing the people, और वो लोगों को अचंभित भी कर रहा था, and they were all calling him great और सब लोग उसे महान बोल रहे थे. and in power of God. और Power of God. ये परमेश्वर का सामर्थ्य है. So through his magic art, he was astonishing them. और उस जादुओं के द्वारा वो लोगों को अचंभित कर रहा था. Philip came and was preaching the word of God. फिलिपुस वहाँ पर आया और वो परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा था, Jesus Christ and kingdom of God. और यीशु मसीह और परमेश्वर का राज्य. People who heard him, जिन्होंने इसको सुना, both men and women, were baptized. स्त्री और पुरुष, उन्होंने बपतिस्मा लिया. Simon also had good news. शामोन ने भी जो है सुसमाचार सुना Was converted, और मन फिराया, believed, विश्वास किया, and converted, baptized, and became a full-time worker. विश्वास किया, मन फिराया, बपतिस्मा लिया और एक पूर्ण समय सेवक बन गया. Started accompanying Philip everywhere. और फिलिपुस के साथ वो सहभागी बनकर जाने लगा. But he was always astonished by the miracles that were happening. लेकिन वो हमेशा अचंभित हो जाता था जो चमत्कार वहाँ पर होते थे. If you are going to a wedding, अगर आप एक शादी में जा रहे हो, when you come back from the wedding, जब आप शादी से वापस आते हो, what will you report to others? आप क्या जो है खबर दूसरों को दोगे शादी के बारे में? What will you report when you come from a wedding? क्या खबर आप दोगे जब आप शादी में जाके वापस आए? What will you describe? Food. लड़की बहुत सुंदर थी. अच्छा program. Eh? Okay. Okay. What did you enjoy? What will you describe? Decoration was good. सजावट काफी अच्छी थी. अच्छा खाया. Very good. बड़ी भीड़ थी. What will you describe? आप क्या बोलोगे? What's the problem? When you come back, you are telling mummy, what will you describe? Food. खाना. All the arrangements were good. Arrangement. The bridegroom or the bridegroom. अंत में जो है जो शादी लड़के ने अपने आप को समर्पित He कर is afraid of that. हाँ, वो उस बात से डरते हैं. However, nobody will describe the sermon. लेकिन कोई भी जो है प्रचार के बारे में वर्णन नहीं करेगा. What will you see there? क्या देखोगे आप वहाँ? What you are interested in. आपकी अभिरुचि जिसमें है. When the meetings were going on, Simon was watching what? जब सभा चल रही थी तो शामोन क्या देख रहा था? The miracles. चमत्कारों को. Later we see again in the 18th verse, when Holy Spirit was given, he was watching that again. और 18 वचन में देखते जब पवित्र आत्मा दिया गया तो उसको भी देख रहा था वो. Why? क्यों? He was doing miracles. वो चमत्कारों को कर रहा He था. was becoming popular. वो मशहूर भी हो रहा था. This attracted him. उसने आकर्षित किया. Now what developed in him? उसके अंदर क्या जो है विकसित हो गया? 23rd verse. 23वां वचन, 8 का 23. क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है. What is that? क्या है वो? What is gallbladder? और पित्त क्या है? What is it compared to?
और पित्त को किससे तुलना की जाती है? It's very bitter. वो बहुत ही कड़वा होता है। Bitter jealousy. और जो है कड़वा जलन, Gallbladder, gall is compared to bitterness and jealousy. और गॉल ब्लैडर उसको कहते हैं, उसको जलन से जोड़ा जाता है, कड़वाहट से। What developed now? अभी क्या विकसित हो गया? In my town, somebody else is becoming popular. मेरे नगर में दूसरा कोई व्यक्ति मशहूर हो रहा है। In my department, somebody is becoming prominent. मेरे विभाग में दूसरा एक व्यक्ति जो है मशहूर हो रहा है। In my church, somebody else is becoming popular. मेरे कलीसिया में दूसरा और कोई जो है मशहूर हो रहा है। I was leading the choir, somebody else is becoming popular. और मैं कॉयर की अगुवाई कर रहा था, लेकिन अभी दूसरा और कोई मशहूर बन रहा है। What develops? क्या आपके अंदर विकसित होता है? Thanksgiving धन्यवाद or jealousy? की जलन? Same thing develops. वही काम हुआ। Now he wanted to become more popular. और शमौन भी और मशहूर होना चाहता था। Now what does he want? He cannot go back, he knows, to the old ways. He is converted. और वो वापस पुराने मार्ग में जा नहीं सकता, क्योंकि उसने मन परिवर्तन कर दिया है। Now he wants spiritual gifts for going. अभी उसको आत्मिक वरदाने चाहिए आगे जाने के So लिए। popularity through spirituality. और मशहूर होना कैसे? आत्मिकता के द्वारा। Was he converted? क्या उसने उसमें मन फिराया था? Eh? What conversion? कैसा परिवर्तन था? He left out. He was doing it for popularity. Now he came to Christ. He again wants same popularity. और वो पहले भी मशहूर होने के लिए कर रहा था, वो मसीह में आया, अब भी उसकी इच्छा है Earlier कि it was मशहूर through होना है। magic. Now it is through spirituality. पहले वो जादूगरी से करता था, अभी आत्मिकता से करना चाहता है। Earlier I was achieving popularity through effort. Now through prayer. और पहले मैं जो है मशहूर होना हासिल कर रहा था अपने प्रयासों से, अभी जो है मैं आत्मिकता से कर Now रहा हूं। it's all through prayer, brother. और ये अभी पूरी प्रार्थना के साथ है भाई। Climbing ladder is through prayer only. और सीढ़ी को चढ़ना जो है वो प्रार्थना के साथ ही है। I pray that the other person will fall. मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि दूसरा व्यक्ति गिर जाए। I don't pull him. मैं उसे खींचता नहीं I हूँ, don't use any wrong method. मैं कोई गलत उपयोग नहीं करता हूँ। The intention of heart is wrong. आपका जो मनोकामना है मन की, वो गलत है। His heart was not right before God. और उसका जो हृदय है वो सही नहीं था परमेश्वर के सामने। The prayer was very good prayer. प्रार्थना जो थी बहुत ही अच्छी प्रार्थना थी। On whomsoever I lay my hand, let him receive the gift of the Holy Spirit. और मैं जिस पर भी हाथ रखो उसमें जो है आत्मा के वरदान मिल जाए, पवित्र आत्मा के। Our prayers, the words may be right, हमारी जो प्रार्थना है, शब्द शायद सही हो सकते हैं, but the Spirit of God knows the heart. लेकिन जो परमेश्वर की आत्मा है वो हृदय को जानती है। The Lord said, you justify yourself before men, but I know your heart. और प्रभु कहता है तू अपना न्याय करता है दूसरों के सामने, लेकिन मैं तेरे हृदय को जानता हूँ। No need was there to bear witness of any man to Jesus. He knew what is in the heart of man. और यीशु मसीह के बारे में गवाही देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो जानता था कि इस व्यक्ति के मन में क्या है। So it said he did not entrust himself to anyone. वो उसने अब किसी को अपने आप को किसी के हाथों में नहीं सौंपा। So that's the background of the passage. और ये जो है भाग की पृष्ठभूमि है।